नहीं बस 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 बेटा बंद Good morning, children. Good morning, ma'am. Happy Guru Purnima. Happy Guru Purnima. You know why Guru Purnima is celebrated? Gurus are respected on their day. Okay? Guru Purnima. The word Guru. Okay? It is derived from Sanskrit word. Gu and Ru. Okay? Like we all are using this word wrongly. But in Sanskrit, the meaning of Guru is darkness. And Ru is who will show light, who will enlighten. So the word is made Guru. Okay? And Guru Purnima is celebrated not only in India, but it is celebrated in Nepal and Bhutan also, in different countries also. Okay? This is one day when we respect our parents, our teachers, whoever is teaching us in this life. ओके जो भी हमको सिखाते हैं ना उसको हम प्रणाम करते हैं उसको एक बड़ा सा थैंक यू बोलते हैं राइट बिकॉज दे आर डूइंग थिंग्स फॉर अस एंड वी आर लर्निंग सो मेनी थिंग्स फ्रॉम देम राइट और नॉट करेक्ट नो ओके सो देयर इज वन श्लोक विच आई विल से एंड आई विल एक्सप्लेन ओके गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागू पाए बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद लियो पाए द मीनिंग इज कि गुरु भी खड़े हैं और गोविंद गोविंद माने लॉर्ड कृष्णा भगवान राइट दोनों खड़े हैं और एक डिसाइपल है आपकी तरह एक स्टूडेंट है वो खड़ा है दोनों खड़े हैं तो उसको लगता है कि मैं पहले भगवान के पैर पढ़ूं या फिर मैं गुरु के पैर पढ़ूं देयर इज अ कंफ्यूजन बिकॉज वी आर टॉट God is highest. Yes or no? In all the religions. So that time the student is thinking for 2 minutes. Okay? Then what he is doing? Instead of going to God first, he is going to his Guru. Okay? Guru Govind दोनों खड़े माने वो खड़े. Okay? काको लागू पाए. He is thinking किसको पैर पढ़ूं? पहले गुरु को पढ़ूं या पहले गोविंद को? लेकिन he is going to his guru. Why he is going to his guru? Because he thinks because of guru I came to know everything about God, about the lessons, about the studies, about the knowledge, everything. Okay, so he is telling the right way wherever I have to learn anything. The guru, the teacher only is the person where I can learn so many things. Okay, so the meaning of this श्लोक is गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागू पाए बलिहारी गुरुदेव because he has taught me so I know about God इसलिए वो पहले गुरु को पैर पढ़ने जाता है और फिर भगवान को पैर पढ़ता है so the stage of guru your teachers is the highest according to our religion correct so now you understood why teachers are so important okay then first guru in your life where you learn from is mother correct or not पहले हम लोग भी माँ बोलते हैं ना मम्मी right and mommy only teaches ऐसे करो so first is mommy then comes daddy correct or not in the family of course you have your grandparents also grandfather grandmother who are teaching you so many things correct or not
So they are showing us the right path about knowledge, about the world, about the society, about the religion. So that is the reason we always tell that you should respect your teachers. First, respect should be to your mother and father, and then comes Guru. And before Guru, God is not there. God is after Guru. Okay? So the teacher's position is much more, as our scholars have said, experts have said. Okay? So explain the shlok also. Now slowly and steadily all the staff members will tell you different things about Guru Purnima. Okay, children? Happy Guru Purnima. Okay. So as we know, we do have so many gurus, right? Yes. Okay. So basically we do have two types of guru. How many types of gurus are there? One guru is a spiritual guru and second is academic guru. What do you mean by spiritual guru? Who teaches you about a God. जो आपको भगवान के ऊपर भरोसा करना सिखाते हैं, हाँ या ना? एंड सेकेंड इज एकेडमिक गुरु, जो आपको पढ़ाते हैं, यानी कि हम दोनों ही गुरु बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर हम गुरु पूर्णिमा की बात करें तो गुरु पूर्णिमा को इंडिया में, भूटान में, नेपाल में सेलिब्रेट किया जाता है त्योहार की तरह। हम उसको बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। अपने गुरु को जैसे कि आपने देखा प्रणाम करते हैं, टीका लगाते हैं, है कि नहीं? ठीक। तो गुरु पूर्णिमा का इतना ज्यादा महत्व है भारत में। इट इज सो मच इम्पोर्टेंट। यस और नो? यस। अभी गुरु पूर्णिमा के बारे में ज्यादा बात करें तो उसका वर्ड आप तोड़ो, गुरु प्लस पूर्णिमा। पूर्णिमा का मतलब होता है फुल मून। आज रात को जब आप घर पे जाओगे या कल रात का चांद अगर किसी ने देखा है तो इट इज अ फुल मून। यस और नो? है कि नहीं? अच्छा, व्हाट डज इट मीन? पूरे रात के अंधेरे में एक अकेला चांद पूरी रात को रोशनी से भर देता है, हाँ या ना? दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड गुरु पूर्णिमा। कि टीचर भी अंधेरे में उजाले की तरफ पूरे आसमान को भर देता है, हाँ या ना? यस। अभी आपको पता ही है हिस्ट्री के बारे में, एसएस पढ़ते हो ना आप सभी? हाँ। तो आपको पता है हमको इंडिपेंडेंस कब मिला था? 47 में, 1947 में। उससे पहले हमारे देश पे अंग्रेज राज करते थे। कौन राज करता था? अंग्रेज। और अंग्रेज ने हिंदुइज्म के सारे बुक्स को दबाने की बहुत कोशिश की, ठीक है? तो बहुत वक्त तक गुरु पूर्णिमा किसी ने सेलिब्रेट ही नहीं किया इंडिया में। सिर्फ वही लोग करते थे जिनको उनके बारे में बरसों से पता था। तो गुरु पूर्णिमा जब बुझने लगा, मतलब सब लोग उसको भूलने लगे, तो उसको फिर से याद किसने दिलाया पता है? वेरी गुड, महात्मा गांधी ने इसको रिवाइव किया। क्या किया? रिवाइव का मतलब होता है जान फूंक देना। और महात्मा गांधी ने ये किसके लिए किया पता है? उनके गुरु के लिए किया। उनके गुरु का नाम था श्रीमद राजचंद्र। क्या नाम था? ठीक है, तो ये तो हम हो गई हमारी हिस्ट्री की बात। इसके साथ साथ रिलीजियस भी गुरु पूर्णिमा का बहुत महत्व है। इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। व्हाई? बिकॉज इट इज अ बर्थडे ऑफ वेद व्यास। वेद व्यास जी का बर्थडे भी है, इसीलिए गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यास पूर्णिमा। अच्छा, डू यू नो हु इज अ वेद व्यास? हु इज ही? महाभारत। वेरी गुड, द पर्सन हु रोट महाभारत, ही इज अ वेद व्यास। ओके, सो अगेन हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू एवरीवन। ओके, Happy Guru Purnima to all my dear students. As sir told you and ma'am also told you कि गुरु पूर्णिमा क्या है, all about the Guru, right? आपको सर ने और मैम ने दोनों क्लियर किया है, राइट? गुरु पूर्णिमा के बारे में। अभी हम प्रेयर में श्लोक बोलते हैं। क्या श्लोक बोलते हैं? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा
गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। इस श्लोक का मतलब पता है आपको? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस श्लोक? नहीं, एक्चुअली जो गुरु ब्रह्मा है, राइट, ही इज ऑल अबाउट टॉकिंग अबाउट द गुरु, जो हमारे जो गॉड है, जो क्रिएचर है, जो ऑलमाइटी है, राइट, ही इज टॉकिंग अबाउट दैट। कि ये श्लोक के अंदर हमें ये कहते हैं कि जो हमारे गुरु है वो हमें ऑल थिंग्स का नॉलेज देते। क्या देते हैं? नॉलेज। मिलता है कि नहीं मिलता है आप लोगों को टीचर से? हर एक टाइप का, राइट, वेदर इट इज इन एज पर द एजुकेशन एंड एज वेल एज ऑफ योर लाइफ, है ना। लाइफ के अंदर जो आपके मॉरल्स होते हैं उसके बारे में भी आपको सिखाया जाता है, साथ में एजुकेशन के बारे में भी सब आपको टीचर्स पढ़ाते हैं। और जो हमारे हिंदी के जो संस्कृत है, कबीर दास, उन्होंने ऐसा कहा है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, है ना। जो टीचर है, टीचर आपको कंप्लीट नॉलेज देते हैं, एज वेल एज जो आपके पेरेंट्स है वो भी आपके गुरु है। सबसे पहले आपके गुरु कौन है? आपके पेरेंट्स। क्योंकि हमें ऐसा सिखाया जाता है कि फर्स्ट घर कौन सा है हमारा? होम। टेम्पल जो होता है हमारा, राइट, जहाँ से हम शिक्षा लेते हैं, राइट, नॉलेज लेते हैं। तो सबसे पहले आपको नॉलेज कहाँ से मिलता है? फ्रॉम होम। एंड योर सेकेंड होम इज योर स्कूल, राइट, टीचर्स आर टीचिंग यू, राइट, टीचर्स आपको सिखाते। सबसे पहले आपके पेरेंट्स सिखाएंगे, उसके बाद टीचर्स, राइट। सो यहाँ पे आपको टीचर क्या सिखाता है? सब सारी चीजें सिखाता है, जो आपको गाइडेंस देता है, आपको टीच करता है, आपको अवेक करता है कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है, राइट। और आपको क्या देता है? नॉलेज। नॉलेज देते हैं कि नहीं देते टीचर्स? और इंफॉर्मेटिव नॉलेज देते हैं, राइट। तो हमें गुरु पूर्णिमा में आपको ये कहा जाता है, और ये जो टीचर्स होते हैं, टीचर्स आपके लिए एक गुरु के समान होते हैं। आफ्टर गॉड टीचर्स भी आपके क्या है? गुरु, राइट। सो थैंक यू एंड हैव अ हैप्पी गुरु पूर्णिमा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी गुरु पूर्णिमा। तो आप सभी ने हिस्ट्री तो जान ली कि गुरु पूर्णिमा कहाँ से मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं और क्यों करते हैं। तो अभी आपको एक स्टोरी सुननी है गुरु पूर्णिमा के बारे में। एग्जाम्पल, यस, ऑफ एकलव्य एंड द्रोणाचार्य। यस, यू ऑल नो हु इज एकलव्य? नो। सो एकलव्य वॉज अ यंग ब्रेव बॉय। वो एक बहादुर लड़का था। कहाँ पे रहता था वो? हस्तिनापुर में। यस, एकलव्य वॉज अ यंग बॉय लिविंग इन द विलेज नोन एज हस्तिनापुर। वो अपने पापा के साथ रहता था हस्तिनापुर। उसको बचपन से ही एम था कि मुझे बड़ा होके कैसे भी करके आर्चर बनना है। यू ऑल नो हु इज आर्चर? जो बाण चलाते हैं। यस, सो एकलव्य वांटेड टू बिकेम अ बेस्ट आर्चर। तो उसने पापा को बोला कि मुझे तो बेस्ट आर्चर बनना है। तो उसके फादर ने बोला, हाँ तू आर्चर बन जा। पर एकलव्य टोल्ड कि मुझे तो सिर्फ गुरु द्रोणाचार्य से आर्चर सीखना है, मैं सिर्फ उनसे ही सीखूंगा। तो हिज फादर सेड कि जो गुरु द्रोणाचार्य है वो सिर्फ रॉयल फैमिलीज को सिखाते हैं। रॉयल फैमिलीज मतलब जो किंग के बेटे हो, जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हो, सिर्फ उन्हीं को सिखाएंगे, वो तेरे को नहीं सिखाएंगे, क्योंकि हम कौन है? पुअर फैमिली से है। तो एकलव्य ने बोला भले, तो अभी मैं उन्हीं से ही सीखूंगा। तो वो कहाँ गया? गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। ही सेड कि अभी मेरे को आपसे क्या सीखना है? आर्चरी सीखनी है। What did he say? I want to learn archery from you. तो गुरु द्रोणाचार्य ने बोला कि मैं तो आपको नहीं सिखा पाऊंगा, क्योंकि मैं सिर्फ रॉयल फैमिलीज को सिखाता हूँ। I will not teach you. Yes. तो वहाँ पे गुरु तभी अर्जुन को सिखा रहे थे आर्चरी। अर्जुन कौन था? You all know about महाभारत? Yes. Who was Arjun? Yes. Arjun was among the 5 Pandavas. Yes. He was from the royal family. तो जब अर्जुन ने देखा इसको, एकलव्य को, तो उसने बोला कि द्रोणाचार्य तुझे तो नहीं सिखाएंगे, वो सिर्फ मुझे सिखाएंगे। तो एकलव्य ने बोला ठीक है, वो वहाँ से चला गया। अभी वो कहाँ जाएगा एकलव्य? उसको घर जाना चाहिए। गुरु ने ना बोला तो नहीं, एकलव्य डिडंट गिव अप। उसने जंगल में जाके गुरु का एक स्टैचू बनाया। कौन से गुरु का? गुरु द्रोणाचार्य।
उसने उसका स्टैचू बनाया और वो रोज उनकी पूजा करता था, रोज सुबह उठ के, और उनके सामने बैठ के आर्चरी सीखता था। किसके सामने? स्टैचू के सामने। यस, ही डिडंट गिव अप। वो अपने घर नहीं गया, बोला गुरु बोले मुझे नहीं सिखाया पर मैं तो सीखूंगा, गुरु द्रोणाचार्य से ही सीखूंगा। तो वो जंगल में रह के उसने स्टैचू बनाया गुरु का, और वो रोज सुबह उठ के गुरु की पूजा करके उनके स्टैचू के सामने रोज आर्चरी की प्रैक्टिस करता था। यस, तो एक दिन जब भी एकलव्य प्रैक्टिस कर रहा था, एट दैट टाइम वन डॉग केम, एक डॉग आया। वो उसको बहुत डिस्टर्ब कर रहा था प्रैक्टिस में। यस, ही वाज कंटिन्यूअसली बार्किंग। तो एकलव्य का कंसंट्रेशन नहीं हो रहा था, उसको बहुत डिस्टर्ब हो रहा था। तो उसने क्या किया, उसने अपने बाण से डॉग को बाण मारा। यस, उसने ऐसे मारा बाण कि डॉग को कुछ भी हर्ट नहीं हुआ, पर उसके मुंह में सीधा लगे सब बाण। यस, डॉग को कुछ नहीं लगा, पर उसका मुंह बंद हो गया। तो डॉग सीधा गया अपने मालिक के पास। तो उसका मालिक कौन था? गुरु द्रोणाचार्य। वो सीधा अपने गुरु के पास गया, गुरु द्रोणाचार्य के पास। फिर द्रोणाचार्य ने देखा कि ऐसा तो कौन सा खिलाड़ी है जिसने डॉग को ऐसे मारा है, उसको लगा भी नहीं है और वो चुप भी हो गया। तो द्रोणाचार्य ने बोला कि मुझे तो देखना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा आर्चर है जो ऐसे मार सकता है। तो द्रोणाचार्य फिर जंगल में उसको देखने गए। उन्होंने देखा कौन था वो आर्चर? एकलव्य। यस, तो उसने गुरु ने पूछा एकलव्य से, तुझे किसने सिखाया इतना अच्छा आर्चर? मैंने तुझे मना कर दिया। फ्रॉम whom did you teach? From whom did you learn this archery? तो एकलव्य ने बोला कि मैंने तो सब आपसे सीखा है। कहाँ से सीखा है? गुरु द्रोणाचार्य से। कि I have made your statue and I am praying every day and I am learning from you. Yes, तो गुरु ने देखा तो इसने तो ये तो बहुत होशियार है आर्चरी में। यस, इसने तो ऐसे ही सब सीख लिया, ये तो सबसे बेस्ट आर्चर बनेगा। फिर तभी गुरु द्रोणाचार्य को याद आया कि उसने किंग को वचन दिया था कि दुनिया में सबसे बेस्ट आर्चर मैं किसको बनाऊंगा? अर्जुन को बनाऊंगा। तो गुरु ने सोचा कि अभी ये एकलव्य बन गया आर्चर, तो अर्जुन का क्या होगा? तो अभी मैं क्या करूं? तो गुरु ने फिर सोचा कि उसने एकलव्य को बोला कि अभी तुझे मैंने सिखाया आर्चर, तो तुझे मुझे गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी। यस, व्हाट इज गुरु दक्षिणा? बताएं आपको गुरु दक्षिणा क्या होती है? पहले के जमाने में फीस नहीं होती थी। यस, तो जो हमको गुरु सिखाए, हमारी कंप्लीट हो जाए फिर स्टडीज या लर्निंग, फिर हमें गुरु को कुछ देना पड़ता रिटर्न में। हमको गुरु ने सिखाया तो हमको गुरु को देना तो पड़ेगा ना कुछ। तो जब भी हम लास्ट में गुरु को देते हैं कुछ अपनी तरफ से, उसको बोलते हैं गुरु दक्षिणा। यस, तो अभी गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को बोला कि अभी तू मुझे गुरु दक्षिणा में क्या देगा? तो एकलव्य ने बोला जो आप बोलो। यस, एकलव्य ने क्या बोला? जो आप बोलो। तो गुरु द्रोणाचार्य ने क्या मांगा पता है आपको? उसने बोला कि तू मुझे अभी अपना राइट थंब देगा। कौन सा? राइट थंब तू मुझे अपना कट करके देगा। गुरु द्रोणाचार्य ने क्या बोला? कौन सा थंब? राइट थंब कट करके देगा। तो एकलव्य ने क्या किया होगा? दिया होगा। यस, बिना कुछ सोचे समझे एकलव्य ने तभी अपना राइट हैंड का थंब कट करके गुरु के सामने रख दिया। क्यों रख दिया? क्योंकि वो उसके क्या थे? गुरु थे। फिर भी एकलव्य ने हार नहीं मानी। वो अपने राइट थंब के कट होने के बावजूद वो एक बेस्ट आर्चर बन गया। यस, तो अब स्टोरी से क्या सीखते हैं? व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम स्टोरी? तो अभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। यस, doesn't matter from where you start, the most thing matter is how much you achieve. आप कहाँ से भी स्टार्ट करते हो वो मैटर नहीं करता है, पर आप कितना अचीव करते हो, कितना आपका डेडिकेशन है वर्क के थ्रू, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, अंडरस्टूड स्टोरी? समझ में आ गई सबको? आप भी ऐसे रहोगे ना अभी? डेडिकेटेड? यस, ओके, थैंक यू एवरीवन। Good morning, everyone. Happy Guru Purnima, first of all. So, all the teachers have given you a nice examples of Guru Purnima, right? I'll say only 2 lines for that. Okay, Guru Purnima is the word for the enlighten our life with prosperous. आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, स्टडी में बोलो, कोई भी तरह की, आपकी मम्मा आपको हेल्प करती है, टीचर्स आपको हेल्प करते हैं ना, राइट? दे एनलाइटन यू एंड हेल्प्स यू, गाइड्स यू, राइट? आपको सब तरह से हेल्प करते हैं। मीन्स गुरु पूर्णिमा इज डेडिकेटेड फॉर द वर्ड गुरु। गुरु के लिए वो वर्ड डेडिकेटेड किया गया है। और
इसमें समझाया गया है कि गुरु एक ऐसा है जो हर तरह की आपकी प्रॉब्लम्स हो उसका सल्यूशन आपको निकाल के देते हैं, राइट। सो टुडे यू हैव लर्न मैनी थिंग्स ऑफ गुरु पूर्णिमा। और याद भी रखोगे, यस और नो? यस, राइट ना। सो वेरी हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू ऑल ऑफ यू। Good morning, my dear students. Happy Guru Purnima to all of you. As you all know, today is Guru Purnima. I will say a few lines for Guru. Who is Guru? Guru means who teaches you, from whom you learn. It can be your mother, father, teacher or anybody from whom you are learning. कोई भी आपको कुछ सिखाता है तो वो आपके गुरु है। आप अपने फ्रेंड से कुछ सीखते हो नया तो भी आपके लिए वो कुछ नया सीखने को मिला। Yes? So today I will explain you one slok. All of you will repeat after me. Tvameva mata cha pita tvameva, tvameva bandhu cha sakha tvameva, tvameva vidya dravinam tvameva, tvameva sarvam mama deva deva. What is the meaning of tvameva mata? You are my mother. Tvameva mata cha pita tvameva. You are my mother. You are my father. Then after comes Tvameva Bandhu cha Sakha Tvameva. What is the meaning of Bandhu? Bandhu means brother. You are my brother and you are my friend. Tvameva Vidya Dravinam Tvameva. You are my education, learning. Vidya means क्या होता है? Education, learning. You are my learning, education. Then Tvameva Vidya Dravinam Tvameva. You are my wealth. Then Tvameva Mata cha Pita Tvameva, Tvameva Vidya Dravinam Tvameva. Then comes Tvameva Sarvam. You are all in all. Okay, आप सब हो मेरे लिए. Guru is everything to you. So children, respect your Guru. Thank you. In all, Guru Purnima is celebrated. Like you all know the history now. Okay, it's not only that, but the epic Mahabharata was written by Vedas. Okay, it is his birthday also. So it is celebrated due to his birthday also. Mahabharata was written by Vedas and it was his birthday. So it is celebrated. Not only that, but the Jains also celebrate. Why they celebrate? Because Gautam Buddha, you are aware of Mahavir, Gautam Buddha, okay? He had got spiritual knowledge on that day. He went in the jungle to find peace, to find God. Okay, so he found God on that day. Okay, through spirituality, like we also have explained. Okay, so his spiritual guru he got on that day, and that day was the day when he gained knowledge. Okay, so that day is celebrated as Guru Purnima. So these are so many reasons. And how should you celebrate? You should bow down to your parents, you should bow down, you should respect your teachers. And the story the teacher told you, from that we have to learn that we have to give something to the teachers. It may be in the form of a rose, it may be in the form of a chocolate, it may be in the form of a card. This is your homage or your respect towards your teacher. Teacher can be anyone. Anything you learn from anywhere is your teacher. Okay? If you see a bird also flying and you learn something from that one, then also that bird also is a teacher. Correct? Because we are learning things from that. So anyone we learn from anything is a Guru. Okay? Thank you. Happy Guru Purnima. Guru Purnima is celebrated on the full moon day. In Hindu calendar, it is celebrated on Ashad and June and July. It is also known as Vyas Purnima because the birthday of Ved Vyas. The word Guru means darkness and the word Guru means remover. So the meaning of Guru is darkness remover. Teachers are our guiders. So thank you all my teachers to guide me. Thank you. Gu means darkness, Ru means remover. In Sanskrit, Guru means remover of darkness. Guru Purnima is celebrated not in India but it's celebrated on Nepal and Bhutan. Thank you.
My name is Jeet. Today is the Guru Purnima. Guru means teacher. My favorite teacher is the Nero sir. She teach us maths and science. नमस्ते टीचर्स और मेरे दोस्तों, आज मैं गुरु के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। गुरु क्या है? गुरु ही है जो हमें शिक्षा देता है। गुरु है जो हमें अंधकार से लेकर रोशनी तक ले जाता है। गुरु ही है जो हमें सब कुछ सिखाता है। इसलिए मैं गुरु का आदर करता हूँ। थैंक यू। Guru Purnima is famous festival of Nepal and the dedicated day of Lord and Buddha. Guru Purnima is the festival of Guru. The Guru Purnima festival is celebrated on the month July or August. I know all my teachers like my son and parents. Thank you. Good morning, my name is Yu. All of us should respect our teachers and Guru.